حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ کر سویا کرو، یہ رب رحمان کی رحمت کو کھینچ لانے والے، عرش کے دروازے کھول دینے والے اور دلوں کو روحانی سکون عطا کرنے والے مقدس اذکار ہیں۔ اے علی، ان الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 4000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، جسے تم نے اپنی مال و دولت کو اللہ کے ان بندوں پر قربان کر دیا جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اے علی، اور سنو، ان کلمات کو پڑھنے سے تمہیں ایسا ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے تم نے مکمل قرآن مجید کلام الہی پڑھا ہو۔ اس کے ہر حرف کو محبت سے، خشیت سے، آنسو سے لبریز ہو کر پڑھا ہو۔ ان کلمات کا پڑھنا گویا تم نے اپنی جنت خرید لی اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اے علی، اور سنو، سب سے عظیم سعادت یہ ہے کہ ان کلمات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا انعام بھی لکھ دیتا ہے، ایسا حج جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکا ہو، جس کے ہر طواف، ہر لبیک اللہم لبیک کہنے پر جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اے علی، اور سنو، ان کلمات کی تاثیر صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہوں گے، یہ تمہاری اندھیری قبر میں روشنی دیں گے، اور قیامت کے دن جب ہر نفس اپنی فکر میں ہوگا، یہ تمہارے ہاتھوں میں شفاعت کا پرچہ بن کر کھڑے ہوں گے، اور تمہارا نام عزت و وقار کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں بلند کر دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے در و دیوار میں خوشبو کے جھونکے محسوس کیے، بہشت کے باغات میں ایک نرمی سی محسوس ہوئی، پھر میں نے ایک نہایت پرسکون آواز سنی جیسے کسی نیک روح کی تسبیح ہو رہی ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جو دنیا میں گمنام تھی، جس نے شادی نہ کی، نہ زیورات پہنے، نہ برات دیکھی، نہ شوہر کی محبت پائی، لیکن اپنے ضعیف باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتی رہی، وہ بیٹی جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، اپنی خواہشوں کو دفن کر دیا، اپنی نیندوں کو صدقہ کر دیا، وہ ہر رات باپ کے لیے جاگتی رہی، کبھی پانی دیتی، کبھی تیمارداری کرتی، کبھی تکیہ درست کرتی تو کبھی اپنی دعاؤں سے باپ کی عمر مانگتی رہی، وہ جب سجدے میں جاتی تو صرف باپ کی صحت مانگتی، کبھی کسی نے اسے دنیا کے بیٹوں میں شمار نہ کیا، لیکن رب کریم نے اسے جنت کی عورتوں میں بلند مقام عطا کیا، وہ جب تھکتی تو زبان پر صرف یہی ہوتا، یا اللہ میرے باپ کو سکون دے دے، وہ خود کم کھاتی لیکن باپ کے ہاتھ میں گرم نوالا رکھتی، وہ خود بیمار ہوتی لیکن باپ کے لیے مسکراتی، جب سب لڑکیاں دلہن بن کر رخصت ہو گئیں، وہ تب بھی اپنے بوڑھے باپ کی چپل سیدھی کرتی رہی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زمین کی مٹی اس کے لیے نرم کر دی گئی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور فرشتے اس کی قبر پر رحمت کی چادریں بچھانے لگے، کیونکہ وہ باپ کی رضا کے لیے جیتی رہی اور باپ کی خدمت میں فنا ہو گئی، اور آج وہ جنت کی ان عورتوں میں سے ہے جن پر رب کریم کو فخر ہے اور جنہیں نبیوں کے پڑوس میں جگہ ملی ہے۔ باوالا حدیث الترمذی۔ جب انسانوں کی نئی نسل زمین پر پھیل گئی اور ان میں سے ایک قوم نے دوبارہ اللہ کو بھول کر سرکشی، غرور اور بت پرستی کی راہ اختیار کر لی، یہ قوم عاد کہلاتی تھی، جو یمن کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت، مال و دولت، بڑے بڑے محلات، کھجوروں کے باغات اور مضبوط ستونوں والے اونچے اونچے محل عطا فرمائے، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے بجائے بتوں کو پوجنے لگے، زمین میں فساد پھیلانے لگے، ظلم کرنے لگے اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے اور کہتے کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور ان کے غرور اور تکبر پر تنبیہ کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج اگاتا ہے۔ لیکن قوم عاد نے انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو، اگر تو سچا ہے تو کوئی عذاب لے کر آ، ہم تیرے رب سے نہیں ڈرتے۔
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं गवाह बना कर कहता हूँ कि मैं तुमसे बेजार हो चुका हूँ। तुम भी अपनी चाल चल लो, मैं भी अपनी चाल चलता हूँ। मेरे रब मुझे हर हाल में बचा लेगा, लेकिन तुमको इस अजाब में मुब्तला करेगा जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो तकब्बुर में अंधे हो चुके थे। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और उनकी नसीहतों को मजाक समझा। अल्लाह ताला ने उनके लिए पहले आजमाइश के तौर पर 3 साल तक बारिश बंद कर दी। उनकी खेतियां सूखने लगी, जानवर मरने लगे और कहत फैल गया, लेकिन उन्होंने तौबा करने के बजाय आसमान की तरफ देखकर बुतों से दुआ मांगना शुरू कर दी। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने आसमान पर एक स्याह बादल देखा और खुश होकर कहा, यह तो बारिश वाला बादल है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो बादल नहीं, ये बारिश वाला बादल नहीं, बल्कि ये तो अंधेरी है जो तुम्हारे रब के अजाब के तौर पर आई है। वो आंधी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल उन पर चली, जो उनके जिस्म को दरख्तों की तरह उखाड़ कर फेंक देती, जो उनके मजबूत महलों को जमीन बोस कर देती, जो उनके गरूर को मट्टी में मिला देती। इस खौफनाक आंधी में कौम आद के तमाम काफिर हलाक हो गए। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले अल्लाह ताला ने बचा लिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसके पैगाम की तबलीग में गुजार दी। कौम आद का अंजाम कुरान मजीद में भी तफसील से आया है, ताकि आने वाले लोग इबरत हासिल कर लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे जिन्हें एक पूरी कौम की तरह रसूल बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई जब उनकी कौम शिर्क, बुत परस्ती और बदअमाली में हद से ज्यादा बढ़ गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब हजरत शीस अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आपका असल नाम नूह बिन लामेक बिन मतरूश बिन इदरीस था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तकरीबन 950 साल की तवील उम्र अता फरमाई और उनमें से 900 साल आपने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने में गुजार दिए। आपकी कौम पत्थरों से बुत तराशी और उनकी इबादत करती थी। उनके बड़े बड़े बुतों के नाम ये थे, दिद, सिवा, यगूस, यऊक और नसर थे। इन बुतों को पहले नेक और साले लोगों की शक्ल में माना गया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ शैतान ने उनके जरिए लोगों को गुमराही में मुब्तला कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात खुफिया और एलानिया मोहब्बत और हिकमत से अपनी कौम को समझाया, उनको अल्लाह के अजाब से डराया और जन्नत की खुशखबरियां दी, लेकिन कौम ने आपका मजाक उड़ाया, आपको झुटलाया और आपकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। वो कहते कि तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, अगर अल्लाह किसी को भेजता तो फरिश्ता भेजता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, ना कि तुम पर कोई बर्तरी जताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचाने आया हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। लेकिन वो लोग अपनी कानों में उंगलियां ठोस लेते, अपने कपड़ों से मुंह ढांप लेते और आपसे बदतमीजी करते रहे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते समझाते थक गए, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज की कि या अल्लाह, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, लेकिन उनकी नफरत और तकब्बुर में और इजाफा होता गया। मैंने उन्हें तेरी मगफरत की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने और मुंह मोड़ लिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, जमीन पर इन काफिरों में से किसी को बाकी ना छोड़, क्योंकि अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरी बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ नाफरमान औलाद ही छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें एक अजीम कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू कर दी। लोग आप पर हंसते, ताना देते और मजाक उड़ाते, लेकिन आप कश्ती बनाते रहे, क्योंकि अल्लाह करीम का वादा था कि वो उन काफिरों पर तूफान नाज़िल करेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती मुकम्मल की जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। एक मंजिल दरिंदों, एक पर चौपाओं और एक पर इंसानों के लिए थी। जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो जमीन से चश्मा उबल पड़े और आसमान से बारिश तेज हो गई, यहाँ तक कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर जानवर के एक नर और एक मादा को कश्ती में सवार किया और अपने ईमान वाले पैरोकारों के साथ कश्ती में सवार हो गए। पानी इतना बड़ा कि पहाड़ भी छुप गए और हर काफिर डूब गया। हत्ता कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिरों में से था, जिसने कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया और कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के दिन अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता, लेकिन वो ना माना और तूफान में डूब गया।
कश्ती मुसलसल कई दिनों तक पानी में चलती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने जमीन को पानी निगलने का हुक्म दिया और आसमान को बारिश रोकने का हुक्म दिया। पानी कम होने लगा और कश्ती जूती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कश्ती से बाहर निकले और एक नई जिंदगी का आगाज किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अल्लाह के दीन को कायम किया और अपने बच्चों को भी अल्लाह की इबादत की तलकीन की। आपकी नस्ल से दुनिया में आगे इंसानों की आबादियां हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सब्र, तवक्कुल और इस्तिकामत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादों पर यकीन की आला मिसाल सिखाता है कि अगर इंसान पूरी ईमानदारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाए और मुखालफत के बावजूद साबित कदम रहे तो आखिरकार कामयाबी अल्लाह के बंदों ही की होती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। नाज़रीन, कौम समूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद के लोगों में से थी। ये लोग कौम आद के बाद अरब के शुमाल मगरबी इलाके हजर या मदाइन साले में आबाद हुए थे। उन्हें अल्लाह ताला ने ताकतवर जिस्म, जहानत, जरखेज जमीन, खूबसूरत वादियों और पहाड़ों में घर बनाने की सलाहियत अता फरमाई। ये लोग पहाड़ों को तराश कर हसीन और जमील घर बनाते और मैदानों में मालात तामीर करते। उनके यहाँ खुशहाली, दौलत, फन तामीर और जमीन के जरखेजी का कोई जवाब न था, मगर इस नेमत ने उन्हें गरूर में मुब्तला कर दिया। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और बुत परस्ती अख्तियार कर ली। वो कई बुतों की इबादत करते थे। उनमें मशहूर बुत हिजर, हबाब, शमस और मनात थे। अल्लाह ताला ने उन सब की इस्लाह के लिए उन्हीं में से एक नेक रासबाज और सच्चे इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। उनको समझाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी और को माबूद ना बनाओ। वही तुम्हें पैदा करने वाला है, वही तुम्हारा खालिक और मालिक है, वही तुम्हारा राज़िक है। लेकिन कौम समूद ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे, ऐ सालेह, तो पहले तो हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ और अक्लमंद था, अब तो हमें उन बुतों की इबादत से रोकता है। अगर तो सच्चा है तो कोई निशानी लेकर आ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन लोगों को ऐसी निशानी दे जो उनके लिए हुज्जत हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और एक मौज़ा ज़ाहिर किया कि एक अजीम पहाड़ के अंदर एक जिंदा ऊँटनी को बाहर निकाला जो कि निहायत खूबसूरत और बड़ी जिसामत वाली थी। ये ऊँटनी पहाड़ की चट्टान से ज़ाहिर हुई जो अल्लाह ताला का मौज़ा और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की वाज़ेह दलील थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की ऊँटनी है, इसे इज़ा ना देना, ये अल्लाह की निशानी है, उसे जमीन में चलने दो। ये एक दिन तुम्हारे कुएं से पानी पिएगी और एक दिन तुम पियोगे। लेकिन कौम समूद ने उस निशानी को देखकर भी इनकार कर दिया, बल्कि वो लोग उस ऊँटनी से हसद और दुश्मनी करने लगे। वो ऊँटनी रोजाना पहाड़ों से उतरती, एक दिन में कुएं का सारा पानी पी जाती और पूरा कबीला उसके दूध से सैर हो जाता। लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार न हुए, बल्कि उन्होंने साजिश की कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे एक सरकश शख्स ने चंद साथियों के साथ मिलकर उस ऊँटनी की टांगे काट दी और उसे कत्ल कर दिया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने गम के साथ फरमाया कि तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया, आज तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर नाज़िल होगा। कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मजाक उड़ाती रही, कहने लगे, अच्छा ले आओ अजाब जो तू कहता है। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही सूरज निकला तो एक जोरदार चीख और जल्जला आया। आसमान से एक आवाज ने उन्हें अपनी लपेट में लिया और जमीन ने नीचे से हिला दिया। उनके दिल फट गए और जिस्म में लर्ज़ तारी हो गया और वह सब के सब अपने घर में मुंह के बल गिर पड़े, बेजान और बर्बाद हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके चंद ईमान वाले साथी अल्लाह ताला के हुक्म से बचा लिए गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब्बे करीम का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर खाई की, लेकिन तुमने खैर खाई को पसंद ना किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत कर गए और बाकी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत और तबलीग में गुजार दी। कौम समूद का अंजाम भी कुरान पाक में बार बार आया ताकि लोग इबरत हासिल करें और जान लें कि अल्लाह की निशानियों का इनकार और उसके रसूल से दुश्मनी किस अंजाम तक ले जाती है। मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, अली, रात को 5 काम करके सोया करो। पहला 4000 दिनार सदका देकर सोया करो, एक बार कुरान शरीफ पढ़कर सोया करो, जन्नत की कीमत देकर सोया करो, 2 लड़ने वालों में सुलह करके सोया करो, 1 हज करके सोया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये अमर महाल है, मुझसे कैसे हो सकेगा। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर सोया करो, इसका सवाब 4000 दिनार सदका देने के बराबर होगा, तुम्हारे नाम अमाल में लिखा जाएगा। 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लिया करो, 1 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब होगा। सूरत मुजम्मिल और दरूद शरीफ पढ़कर सोया करो, वो जन्नत की कीमत अदा होगी। 10 मरतबा अस्तगफार पढ़कर सोया करो, 1000 गुलाम आजाद करने और 2 लड़ने वालों में सुलह के बराबर सवाब होगा। 4 मरतबा सूरत अखलास पढ़कर सोया करो, 1 हज करने का सवाब होगा। ऐ अली, इन कलमात की तासीर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, ये तुम्हारे साथ कब्र में भी होंगे। ये तुम्हें अंधेरी कब्र में रोशनी देंगे और क़यामत के दिन जब हर नफ्स अपनी फिक्र में होगा, ये तुम्हारे हाथों में शफात का परचम बनकर खड़े होंगे और तुम्हारा नाम इज्जत और वकार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बुलंद कर दिया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और निहायत आजी से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यमन से आया हूँ, एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करके आया हूँ, सिर्फ आपसे चंद सवाल करने के लिए, आपके कदमों में बैठे और अपनी कैफियत अर्ज करने के लिए। मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल सफेद हो चुके हैं और उनकी कमर झुक गई है, चलने की ताकत नहीं रही। मैं उन्हें अपने हाथों से उठाकर हज पर लाया, रास्ते भर उनकी खिदमत करता रहा, कभी उनके पांव दबाता, कभी उन्हें अपने कंधों पर बिठा लेता। जब वो सो जाते तो मैं उनके पास जागता रहता, उनकी सांसों की आवाज़ें सुनता, उनकी ज़रूरियात से पहले उनके लिए हाजिर रहता। मैंने उनके लिए अपनी नींद कुर्बान कर दी, भूख के वक्त उनका पेट भरता रहा और खुद भूखा रहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, उसकी आंखों में आजी थी, माथे पर थकन थी, लेकिन दिल में एक सवाल था। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इनकी एक हिचकी का भी बदला नहीं चुका सकता, यानी वो एक हिचकी जो तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त दर्द से ली थी, जब वो एक रात जो तेरे बाप ने तपती धूप में मेहनत करते गुजार दी, उन लम्हों का बदला भी तो नहीं चुका सकता। ये अल्फाज सिर्फ उसके लिए नहीं थे, ये क़यामत तक आने वाले हर बेटे हर बेटी के लिए थे। अगर कोई ये समझे कि मैंने इसका हक अदा कर दिया तो ये बात गलत है। ये हदीस मुबारका हम सबको बताती है कि माँ बाप का हक किसी तौर से किसी पैमाने से पूरा नहीं होता, वो सिर्फ रब की रजा ही से मुमकिन है, और वो रजा वालिदैन के कदम चूमने, उनके लिए आंखों से आंसू बहाने और उनके बुढ़ापे को जन्नत का वसीला समझने में है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों के वालिदैन पर अपनी खास रहमतें नाज़िल फरमाए, उनकी जिंदगी को आसानियों से भर दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, या जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।